શ્રી કુંદ આચાર્ય વિરચિત આ નિયમસાર પરમાગમ છે. તેમાં આપણે પાંચમો અધિકાર પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ. ફરીને એક વિચારવા જેવું છે, આ નિયમસાર એ શેનું શાસ્ત્ર છે? ચરણાનુયોગનું છે કે દ્રવ્યાનુયોગનું છે? કોઈને એમ લાગે કે આ અધિકાર તો શેના આવશે બધા હમણાં? પ્રતિક્રમણ ના આવશે, પ્રત્યાખ્યાન ના આવશે, આલોચના ના આવશે, પ્રાયશ્ચિત ના આવશે, આવશ્યક ના આવશે, એના પછી સમાધિ ભક્તિ, તે બધા શેના છે બધા? તો ભાઈ એ વિકલ્પ રૂપ જો હોય તો એ બધા શેમાં આવે? ચરણાનુયોગમાં. અહીંયા બધાના નામ પહેલા એક એક આખું જુદો શબ્દ આપ્યો હોય. શુદ્ધ નિશ્ચય પ્રાયશ્ચિત, અહીંયા પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ, એ રીતે કહીને આ બધા શેના અધિકાર છે? ચારિત્ર ગુણની નિર્મળ પર્યાય જે સંવર નિચરા રૂપ છે એની વાત છે. માટે આ નિયમસાર પરમાગમ શેના ઉપરનું છે? આખું દ્રવ્યાનુયોગનું છે. અને અહીંયા આખું જે શુદ્ધ રત્નત્રયની જે મોક્ષ માર્ગમાં ચારિત્રની પણતિના બીજા નામથી આખો જે અધિકાર શરૂ થાય છે જુદા જુદા, એમાં પહેલા અહીંયા આખું પ્રતિક્રમણ પરવા પહેલા તું કોના આશ્રય આધારે તને આ પ્રતિક્રમણ થશે? એના માટે જેને પહેલી જ લાઈનમાં આપ્યું તો શુદ્ધ આત્મા, આ એનું અહીંયા વર્ણન આવે છે કે શુદ્ધ આત્મામાં નથી કોઈ, જેને કહીએ ગતિના ભેદો, નથી કોઈ ગુણસ્થાન માર્ગના સ્થાન એના કોઈ ભેદો, નથી કોઈ મનુષ્ય પર્યાયમાં, જીવની પર્યાયમાં યોગ્યતા રૂપના જે બાળકપણાનું, વૃદ્ધપણાનું, યુવાનપણાનું એ પણ ભેદ નથી, જેનામાં કોઈ મોહ રાગ દ્વેષ નથી અને ચાર કસાય નહીં, એવા નથી એવા શુદ્ધાત્મ તત્વને અહીંયા આખી વાત લે છે. એ આપણે 5 ગાથાઓ પૂરી કરીને હવે આવો વિષય બતાવીને હવે કે છે કે હવે આ ઉપરોક્ત વિવિધ વિકલ્પોથી, જો આમાં એક બહુ ફરીથી વિચારું, વિકલ્પ એટલે આપણે સામાન્યપણે શું લઈએ છીએ? વિકલ્પના અર્થમાં રાગ દ્વેષ આદિના જે વિકાર ભાવ છે એને લઈએ છીએ આપણે, શુભ અશુભ રાગને લઈએ છીએ. અહીંયા વિકલ્પનો એક અર્થ શું હોય છે? ભેદ હોય છે. આપણે કદાચ હિન્દીમાં એટલા બધા છે ને નથી, નહીં તો આપકે લીએ ઓર કોઈ વિકલ્પ નહીં હોય, એટલે તારી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી. એટલે વિકલ્પનો એક અર્થ શું છે? ભેદ છે. અને 47 નહીં છે ને, એમાં પણ એક આવે છે વિકલ્પ નહીં ને અવિકલ્પ નહીં, અને એનો અર્થ શું લખ્યો છે? ભેદ નહીં અને અભેદ નહીં. કોઈને એમ થાય કે આવો અર્થ તમે ક્યાંથી કાઢો? વિકલ્પનો અર્થ તમે ભેદ અભેદ એવા કેવી રીતે કાઢો? વિકલ્પ અને અવિકલ્પનો અર્થ તો જો ભાઈ, ક્યારે પણ છદ્મસ્થ જીવ છે એ ભેદનું લક્ષ કરે છે ત્યારે એને શું ઊભું થાય છે? રાગ ઉભો થાય છે. તો રાગને વિકલ્પ કહે છે ને, તો કોના લક્ષ્ય થયો છે? ભેદના લક્ષ્ય. માટે એને એક વિકલ્પ કહેવાય ને ભેદ કહેવાય છે. ગુણ ભેદ છે, પર્યાય ભેદ છે, તો એ બધા એના કોઈ ભેદના લક્ષ્ય એને રાગ ઉભો થાય છે, તો રાગ ઉભો થાય એને વિકલ્પો બધા. માટે એનો અર્થ શું છે? વિકલ્પનો અર્થ શું બીજો થાય છે? ભેદ પણ થાય છે. તો અહીંયા કે છે વિવિધ વિકલ્પો એટલે ભેદોથી ભરેલા વિભાવ પર્યાયોનો નિશ્ચય હું કરતા નથી. હવે જે આખી વિષય લેવો તો પહેલો શું છે? ક્યાં ભાવો લીધા, હવે એમાં એટલા ઉમેરે છે. એમાં એના ઓપ્શન, ક્યાં ઓપ્શન? કે એનો હું કરતા નથી, કરાવનાર નથી, અને એનો અનુમોદક પણ નથી. કારણ કે શું છે? એ મારામાં છે નહીં. હું પેલામાં આવ્યો ને, એ મને નથી એમાં આવતું હતું ને, મને નથી એટલે મારામાં નથી. અને હું કોનો કરતા હો? જે મારામાં હોય એનો, કે મારામાં ન હોય એનો? હું પડદ્રવ નો કરતા છું કે નહીં? પડદ્રવ મારામાં છે જ નહીં તો કરતા. આ એક પહેલો એક હંમેશા સિદ્ધાંત યાદ રાખો. શું યાદ રાખો? જે મારામાં ન હોય તેનો હું ક્યારેય કરતા હોઈ શકું નહીં. તો આ જે બધા ભેદો મારામાં નથી અને મારામાં નથી, તો હું એનો શું નથી? એનો કરતા નથી. કોઈને હજી પ્રશ્ન થાય કે આવું રાગદ્વેષ નો કરતા નથી?
કસાયનો હું કરતા નથી તો આ દુઃખ કોને છે? દુઃખની કલ્પના કરી છે. દુઃખની કલ્પના કરી છે. દુઃખની કલ્પના છે, ખરેખર દુઃખનું વેદન નથી. કલ્પના છે. એટલે દુઃખનું વેદન નથી ને, તો દુઃખનું ને આકુરતાનું શું ફરક પડ્યો? આકુરતાનું વેદન કહીને પણ દુઃખનું વેદન થયું, સુખનું વેદન થયું. આકુરતાનું એટલે શું છે? અનાકુરતા સુખ છે તો આકુરતા દુઃખ છે. સીધો જો તમે અનાકુરતાને સુખ કહો છો તો આકુરતાને શું કહેવાય? દુઃખ કહેવાય. તો ફરીથી દુઃખનું વેદન છે કે દુઃખની કલ્પના છે? કલ્પના છે. કલ્પના જ છે, ખરેખર દુઃખ નથી. તો સારું, તો તમારે કાંઈ સુખી થવાનો ઉપાય જ કરવો નથી. કલ્પના નથી, દુઃખનું વેદન છે. અહીંયા તો એક બાજુ એમ કે ચાર ગતિમાં તો પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે, મિથ્યાત્વમાં અનંત અનુબંધી કસાય ને અનંત દુઃખ છે, એ બધું તો ક્યાંય જતું હોય. અને એક બહુ જ વિચારવું છે, જો દુઃખ નથી ને તો સુખનું વેદન નથી, અને દુઃખ ને સુખનું વેદન નથી તો શું થઈ જશું? આપણે જડ થઈ જશું. એવી અહીંયા આખી શૈલી મને નથી, એનો અર્થ શું છે? તું સ્વભાવની તરફ એકવાર જો. પર્યાયમાં ઊભો છે તો બધું છે, દુઃખનું વેદન છે. તો અહીંયા આખા ટીકાળી સ્વભાવના દ્રષ્ટિમાં આખી વાત લીધી છે કે એ ખરેખર, એટલા માટે શબ્દ જો વાપરો છે, પહેલું ફરીથી વાંચીએ. विविध विकल्पों भेदों से भरे हुए विभाव पर्यायों को निश्चय से, निश्चय ने यह मानने क्या कहना है? स्वभाव की दृष्टि में मैं स्वभाव कैसा हूँ, रागादि से रहित हूँ या सहित हूँ, कि ये सभी विविध प्रकार के जो विकल्प है, भेद है, उसमें मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे त्रिकाली स्वरूप में नहीं है. ये सबसे रहित मैं कैसा हूँ? मैं यहाँ जैसे बताया ये सबसे रहित मैं हूँ. इस प्रकार यहाँ कि उपरोक्त विविध विकल्पों से माने भेदों से जो विभाव पर्याय है वो निश्चय से, मूल शब्द कहाँ से ढूंढना है? निश्चय से. ये मैं उसका करता नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरे में नहीं है. करता मैं नहीं, तो दूसरे द्वारा कराना वो भी मेरा स्वरूप नहीं है. और तीसरा कैसा है? पूतगल कर्मरूप कर्ता का मैं अनुमोदक नहीं हूँ. कोई करे तो करे, मुझे इससे क्या लेना देना, इसलिए मैं क्या है? उसका अनुमोदक भी नहीं. इसका माने इस ये विविध भेद जो होते हैं, चार कसाय होता है, राग द्वेष मोह होते हैं, फिर गुणस्थान मार्गांशादि आदि सभी भेद होते हैं, चार गति, ये किसके निमित्त से होते हैं? किसके निमित्त से होते हैं? पूतगल के निमित्त से. इसलिए शब्द क्या दिया? पूतगल कर्म रूप कर्ता का. ऐसा शब्द किसी को लगे विभाव पर्याय को पूतगल कर्म का कर्ता कैसे कहें? कैसे कहे? हाँ, आप एक बाजू तो मना करते, वो पूतगल जो करता और अपने विभाव पर्याय जीव की दो के बीच में कर्ता कर्म तो होते नहीं. होते ये तो हम मानते ऐसे ही, कर्म के उदय से हमें विकार होता है, तो ऐसे ही आ गए. तो आप ही देखते, आप क्या लिखा फिर से आगे? विविध विकल्प माने भेदों से भरी हुई विभाव पर्याय. फिर से जो भी विभाव पर्याय वो कैसी एक रूप है कि अनेक रूप है? अनेक भेद रूप है. तो उसका मैं निश्चय से मैं करता नहीं, कार्यता नहीं, तो फिर कि कौन करता है? कि पूतगल करता है, मैं उसका अनुमोदक करता नहीं, करता, और कोई दूसरा करे तो उसका मैं क्या है? अनुमोदन नहीं. तो यहाँ कौन करता लिखा है? पूतगल कर्मरूप कर्ता का जो ये विभाव पर्याय प्रमाण है, उसका मैं अनुमोदक नहीं हूँ. तो फिर से यही प्रश्न आता है, ये तो पूतगल कर्म एक अलग है, विभाव पर्याय जीव की पर्याय में दो तो भिन्न है, फिर भी आप उनको क्या क्या कहते हैं? करता है. लेकिन भाई आगे पहले क्या शब्द लिखा है? निश्चय से. निश्चय से माने क्या? स्वभाव में एक भी गुण तू बता दे, ये राग को करे, ऐसा कोई एक भी गुण बता दे. तो जो स्वाभाविक करता नहीं, तो मैं उसका अनुमोदन में क्यों करूं? क्योंकि यदि स्वभाव में
राग करे ऐसा कोई गुण हो तो अंततः क्या होगा? राग का तो अभाव ही नहीं होगा। ये न्याय से सोचना है। ये प्रयोजन के लिए ये शब्द प्रयोग है। समय सार में, कर्ता कर्माधिकार में और आगे जीव अधिकार बहुत जगह से ऐसा शब्द लिया है। और सही मायने में जो गाथा है 32-33, इसमें पुद्गल कर्म को क्या कहा है? भावक। भावक भाव्य। और भावक भाव्य। रागादि भाव तो उसका नाम क्या है? भाव्य। भाव्य। तो उसका अर्थ क्या? भाव्य का कर्ता कौन है? भावक। भाव को करने वाला, भाव्य को करने। तो वहां क्यों ऐसा लिया? तो एक प्रथम सिद्धांत सिद्ध लेना। तुझे रागादि भावों से, विभाव भावों से भिन्नता करनी या नहीं करनी है? एकत्व छोड़ना या नहीं छोड़ना है? एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व जो भी कहो, तो तू कैसे छोड़ेगा? इसका कर्ता बन के तू उसको छोड़ेगा? उसमें एकत्व ममत्व कर सके, उसके वेदन करेगा तो अंततः क्या करना पड़ेगा तुझे उससे? तो ये भिन्नता कराना है। दूसरा, जिसका तू आश्रय लेना चाहते है, जिसका आश्रय लेना चाहिए सुखी होने, उस स्वभाव में देख ले, कहीं भी अशुद्धता है, विभाव है, विकार है, कहीं भी दिखता है क्या? एक भी गुण के कारण से? तो दो बात हुई, मुझे उससे भिन्नता करनी है, स्वभाव में देखूं तो वह है ही नहीं। तो फिर प्रश्न हुआ, तो अभी जो खड़े होते राग द्वेष मोह, वो किसके है? आचार्य देव हमें यहाँ क्या देते, उसको देते ना, एक ट्रिक बताते, देख तेरे स्वभाव में वो करने का तो स्वभाव नहीं है, कोई गुण नहीं है, और फिर भी तो खड़े होते हैं तो किसके लक्ष्य से होता है, किसके निमित्त से होता है? पुद्गल कर्म से। तो फिर यहाँ आत्मा से भिन्न बताने के लिए उससे कि पुद्गल कर्म का वो कार्य है, इस प्रकार यहाँ। तो कोई कि फिर से एक स्टेटमेंट, जीव में रागादि करे ऐसा कोई स्वभाव है? नहीं, पक्का नहीं है। नहीं, जीव में रागादि करे ऐसा कोई स्वभाव है, ऐसा कोई गुण है? वैभाविक शक्ति है। वैभाविक शक्ति इसलिए राग का करते ऐसा, तो फिर अभी आप कर सकता है। देखो, कर में ऐसा शब्द है, दो फर्क है। और एक दूसरा, वैभाविक शक्ति से भी राग क्या है? राग क्या है? अशुद्ध स्वभाव में हो ऐसा वैभाविक शक्ति। तो वैभाविक शक्ति है यदि पर लक्ष्य करे तो पर्याय में होगा। स्वभाव में तो वो भी नहीं है। वैभाविक शक्ति ऐसा नहीं है कि स्वभाव में राग करे ऐसा कोई गुण है। वैभाविक शक्ति क्या बताती है हमें? कि जो धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल चार द्रव्य है, उसमें अशुद्धता होने का विकार उन संबंधी उनमें क्या क्या है? अभाव है। पर्यायगत योग्यता नहीं। द्रव्य में तो है ही नहीं। चार जो द्रव्य का नाम दिया उसमें अशुद्धता, विकार, विभाव होने की क्या नहीं है? योग्यता ही नहीं। कहाँ नहीं है? पर्यायगत भी नहीं है। तो जीव में क्या है? जीव में क्या है? स्वभाव में तो है ही नहीं। क्या है? पर्याय में है। पर्याय में है। तो कभी कि पर्यायगत योग्यता है, इसका अर्थ नहीं कि सदैव हो। यदि सदैव होगा तो गुण रूप स्वभाव हो जाएगा। तो क्या है? पर्यायगत एक योग्यता है। इसमें एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? जब तू पर लक्ष्य करेगा तो होगा। ये देखो, ये सब पूरा हम समझे नहीं और ऐसे ही कुछ भी बोल दोनों में कि ना जीव तो स्वभाव राग करना है, तो मेरे भाई तो छूटेगा कैसे? तो सिद्ध भगवान को देख ले, उसमें राग है ही, तो बस समझ लेना मेरा स्वभाव नहीं, इतना तो पक्का कर लेना। पर्याय में होता है अलग बात है, लेकिन सिद्ध समान मेरी कई पर्याय है, ये मेरा स्वभाव है। अभी सिद्ध समान मेरा स्वभाव है या मेरी पर्याय है? स्वभाव है। पर्याय मानू तो मैं सिद्ध हो गया। हाँ, तो इसमें कोई अच्छी बात है ना? फिर सिद्ध हो गया मतलब अभी अरे निश्चयभाषी हो जाएगा। क्या है? स्वभाव में है ऐसा जो स्वीकार करेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा।
और पर्याय में मान लेगा कि मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, सिद्धता हो गई, निशाबाद हो जाए। तो यहाँ स्वभाव की महिमा लेके बात करना है कि स्वभाव में राग करे ऐसा नहीं है, और विभाव से विभक्त होना है। तो ये उत्पन्न होते ही उसको कहीं स्थान तो देना पड़ेगा ना। तो जीव में नहीं है, जीव को करे ऐसा स्वभाव नहीं है, तो नहीं है तो उसका अर्थ क्या हुआ? तो भी खड़ा तो होता है ना। तो जीव में स्वरूप स्वभाव नहीं है तो उसका नाम क्या देते हैं? अजीव है। तो अभी प्रश्न हुए अजीव कितने द्रव्य है? 5 है। इसमें धर्मास्तिक ही कहेंगे? अजीव उनको कहा कि जीव के स्वरूप स्वभाव में नहीं है, स्वभाव से भिन्न है। तो जीव स्वभाव से भिन्न है तो उसका नाम अजीव कहा। तो अजीव में 5 ऑप्शन है, तो वहां उसको धर्मास्तिक कहेंगे, अधर्मास्तिक किसका कहेंगे? क्योंकि धर्म अधर्म आकाश वो तो ऐसे कोई सीधा निमित्त भी नहीं होते हैं। तो किसके लक्ष्य से निमित्त से होते हैं? पुद्गल। तो पुद्गल में भी मुख्यतः कोई बार आता है कर्म के परिणाम है। तो इस प्रकार वहां उसको एक स्थान दिया है, भेद ज्ञान कराने के लिए स्वभाव दे। इसलिए फिर एकांत से ऐसा ही मत मान लेना कि रागति तो क्या है? पुद्गल के परिणाम है। अच्छी बात है, पुद्गल के परिणाम होंगे तो वो कैसे शीत होंगे, उष्ण होंगे। रागादि परिणाम यदि तू एकांत पुद्गल के मान लेवे तो वो एक तो काले होते हैं या सफेद होते हैं? पुद्गल में रंग तो देना पड़ेगा ना। फिर ठंडे होते हैं, उष्ण होते हैं। अरे भाई, जहाँ जितनी अपेक्षा इतना समझना, कहीं अपेक्षा कहीं दूसरी जगह में लगाना नहीं है। तो यहाँ फिर से तो भाव्य भावक संबंध वो व्यवहार से कहा जाएगा, क्योंकि वो 2 द्रव्य के बीच में फिर से वही वहाँ क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि मेरे में नहीं है। स्वभाव सिद्ध करना है तो उसको स्वभाव की दृष्टि से, दूसरे शब्द में शुद्ध नहीं की अपेक्षा से, सर्वथा नहीं सर्वंग नहीं कहा है। उसी समय पर्याय दृष्टि से देखे तो जीव ने अपने ही 2 प्रकार, मिथ्या दृष्टि तो अज्ञान भाव से करता है, और ज्ञानी धर्मात्मा है तो करता या करता है? करता है। ज्ञानी की बात है, अज्ञानी तो हम सब अज्ञान भाव से तो करता है। पर्याय दृष्टि में अज्ञान भाव से तो करता है, स्वभाव तो है ही नहीं, वो तो एक अलग से बात है। अभी ज्ञानी को हम लगाए, सिद्ध भगवान करता है कि नाराज नहीं? ज्ञानी को सिद्ध भगवान फिर से हम तो करता है, तो सिद्ध भगवान करता है कि नहीं करता? किसका? रागादि भाव का? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कोई अरे पर्यायगत भी नहीं है। अभी तो कौन सी अपेक्षा लगाएगा? देखो, एक फिर से कोई अपेक्षा लगानी है तो वहां कोई धर्म होना चाहिए। जो कोई व्यक्ति को आप कहते हैं संतान बोलते हैं ना हिंदी में भी, नहीं है तो उनको किस अपेक्षा से पिता कहेंगे? कोई संतान होना चाहिए ना, तो फिर कहना उसका कोई भतीजा ही नहीं तो उसको चाचा कैसे कहेंगे? इसलिए कभी भी अपेक्षा लगानी है तो पहले क्या देखना? वो धर्म उसमें होना चाहिए। सिद्ध भगवान को तो स्वभाव में तो किसी को नहीं है, लेकिन पर्यायगत भी नहीं है। और हम तो अज्ञान भाव में वही उसमें एकाकार मान लेते करते। अभी धर्म साधक दशा में बात करें तो वो साधक आत्मा, ज्ञानी से लेकर मुनिराज कोई भी लो, वो राग के करता है या नहीं है? राग के करता है, मगर उसको अस्थिरता का राग कहा। अस्थिरता का राग कहा, लेकिन करता है, बराबर करता है ना, क्योंकि ज्ञानी को राग से भेदनान नहीं हुआ, इसलिए भेदनान तो हुआ। तो भेदनान हुआ और फिर भी आप बोले करता है, तो दोनों कैसे हुआ? भूमिका अनुसार। भूमिका अनुसार माने क्या? अभी भूमिका अनुसार तो बोल दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसका कैसे हम कैसे घटाएंगे? भूमिका अनुसार है, लेकिन अपेक्षा लगानी पड़ेगी ना। इसलिए देखिए, प्रवचन सार की 46 नई पढ़नी पड़ेगी। इसमें दोनों नहीं आती। कौन सी नहीं आती है? कर्ता नहीं है और अकर्ता नहीं, दोनों है। भोक्ता नहीं भी है और अभोक्ता नहीं भी है। वे गुरुदेव के प्रवचन बहुत सुंदर पढ़ने योग्य है। फिर से स्वभाव दृष्टि से जो है तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी कोई भी स्वभाव में राग करे ऐसा नहीं। यहाँ तो ज्ञानी में पर्याय में है, इसमें 2 प्रकार कि वहां उनका एकत्व नहीं है, इस अपेक्षा वो कैसा है? अकर्ता। फिर भी
परिणाम में है तो परिणमन है इसलिए करता है। देखो दो अलग बात हुई, कौन सी आई? ज्ञानी इसमें एकत्व नहीं करता है, करने योग्य ऐसा अभिप्राय नहीं है। इस अपेक्षा जो समय सार में मुख्यतः आती है कि ज्ञानी राग का करता नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां एकत्व नहीं है, उससे तो वेदनान हुआ, वो करने योग्य नहीं मानता है इसलिए नहीं है। फिर भी प्रवचन सार ज्ञान प्रदान शैली में देख फिर से कर्ता की एक व्याख्या क्या है? जो पर्ण में सो करता। तो राग का अस्थिरता है, कमजोरी है, चारित्र में भी पूर्णता नहीं, इस अपेक्षा है। फिर से पर्णमान है इसलिए करता है, लेकिन साथ में कर्ता बुद्धि नहीं है, करने योग्य है ऐसा अभिप्राय नहीं है। इसमें एकत्व ममत्व नहीं है, इस अपेक्षा उनको क्या कहेंगे? अकर्ता भी कहें। तो फर्क क्या हुआ? चलो, एक बाजू आप कर्ता कहे, दूसरी बाजू कर्ता नहीं कहे, उसका अर्थ क्या है? कि होता है मगर करने योग्य नहीं है। इसका अर्थ है परिणमन है लेकिन कर्ता बुद्धि नहीं है। कर्ता बुद्धि नहीं। और हमारे जीवन में क्या है? परिणमन है और वो करने योग्य से ही अभिप्राय कर्ता बुद्धि भी है। तो ज्ञानी के जीवन में परिणमन है इसलिए कर्ता कहो, लेकिन कर्ता बुद्धि नहीं है, क्योंकि साथ में कर्ता नहीं के साथ कौन है? अकर्ता नहीं भी है। ये बहुत शैली दोनों समझनी। तो यहाँ तो अपने स्वभाव दृष्टि में ही यहाँ पूरी बात लेते हैं। तो यानी कि भाव्य भावक समझ लो या तो ज्ञेय ज्ञायक समझ लो, दोनों के अंदर फर्क है। भाव्य भावक अभी लेते हैं कि भाव्य भावक जो हुआ वो स्वभाव की दृष्टि से बात करते हैं इसलिए वो पुद्गल में हुआ, मगर भाव्य भावक तो ज्ञानी को भी हो सकता है कि ज्ञानी की बात है। नहीं, भावक भाव्य जो है अस्थिरता के लिए और एक अज्ञानी उनको है वो तो एकत्व ही करते हैं। ये जो ज्ञानी है वो उसको भावक भाव्य, अज्ञानी है वो तो करता है। ज्ञानी को भी अस्थिर का परिणमन है, इस अपेक्षा से भावक भाव्य। स्वभाव दृष्टि में तो भावक भाव्य भी नहीं, राग के साथ नहीं ज्ञायक से। मगर ज्ञानी को भी भाव्य भावक शुद्धता की अपेक्षा से कह सकते हैं कि ज्ञान हुआ तो वेदन हुआ, ज्ञान हुआ तो आनंद का वेदन आनंद हुआ, ज्ञान हुआ तो आनंद हुआ। तो इस तरह से भाव्य भावक कह सकते हैं। उनका तो स्वभाव के साथ माने निर्मल पर्याय की जो आनंद का वेदन है वो भावक भाव्य है। तो भावक भाव्य है ना, वहां पर ज्ञानी तो है ना। तो अन्य शुद्धता की अपेक्षा से देखो तो भी भाव्य भावक है, और शुद्धता से देखो तो भी है। लेकिन वहाँ एक भावक भाव्य से भेदनान हुआ, वो भी एक है कि वहाँ एकत्व पूर्वक का भावक भाव्य नहीं। हाँ, वो तो बराबर अस्थिरता है इसलिए कर्ता नहीं से उसको कर्ता और भोक्ता कह सको। और स्वभाव दृष्टि से देखना है तो जब पूरा कर्ता कर्म अधिकार है ना, इसमें कर्ता कर्मपना स्थापित किया है कि निषेध किया है? कर्ता समय सार का कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्मपना का स्थापना हुई, क्या उसका निषेध हुआ? स्थापना भी हुई और बाद में निषेध भी हुआ कि रागादि आश्रव के साथ कर्ता कर्मपने का निषेध है और अपने ज्ञान भाव के साथ कर्ता कर्म स्थापित करते हैं। और ज्ञान भाव का मैं करता हूँ तो ज्ञान भाव का भोक्ता रूप आनंद होता है मुझे। वहाँ कर्ता भोक्ता होगा, यहाँ वहाँ कर्ता कर्म या तो भोक्ता भोक्य हो गया स्वभाव के साथ, इसलिए आनंद का वेदन वो होता है। लेकिन आश्रव भाव के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है, क्योंकि नहीं तो आकुलता का वेदन नहीं कर। इसलिए जहाँ जिस दृष्टि से जिस प्रकार से है इस प्रकार से समझना। आश्रव तो है तो दोनों प्रकार से है। और वहाँ असंज्ञ परिणाम जो है ना, आश्रव अधिकार की पहली गाथा, वहाँ कुंदकुंद आचार्य गए तो जो संज्ञा आश्रव है वो जीव के अनन्य परिणाम है, वहां तक लिया है। और वहाँ तो आश्रव अधिकार है, आश्रव को सिद्ध करते हैं, फिर कहेंगे कि आश्रव तेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञानी ने उससे भेदनान किया। इस प्रकार की भी शैली साथ में है।
तो जैसे भाव्य भाव की स्पष्टता हुई, तो इस तरह से ज्ञेय ज्ञायक में भी इस तरह से लेना, क्या नहीं, यानी कि मैं पर को जानता हूँ, हाँ तो जानता हूँ तो है, तो जानता तो है। तो फिर से और ज्ञेय है मैं, यदि आपको ये शैली लेना है कि आत्मा यानी कि मुख्यता से लेवे, या तो कि भाई ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता है, तो ऐसा आता है नियम सार में आएगा। सुधोपयोगतिर आखिकार में देख लो कि वो 2 गाथा ऐसी है कि केवली भगवान किसको जानते हैं, अपने आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते हैं। ऐसा कोई कहे, कुन आचार्य स्वयं गाथा में गए तो कौन सा दोष आता है? तो आचार्य देखे नहीं, कोई दोष नहीं है। तो देखो, हाँ यही नहीं, ज्ञान को जानता है कि नहीं आया, कि नहीं लोकालोक को नहीं जानता है। अरे भाई, उसकी दूसरी गाथा भी ऐसी है कि केवली भगवान किसको जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, अपने आत्मा को नहीं जानता है। ऐसे कहे तो कहते वो भी दोष नहीं है। यही क्यों? इसे परस्पर विरुद्ध क्यों है? देखो वहाँ शब्द क्या लिया है कि जो भी कोई भी आत्मा चलो ले लो, पर को जानते हैं तो उसमें तन्मय होते नहीं है, इस अपेक्षा से पर को नहीं जानता है। जैसे कर्ता किसे कहे, जो अपने में है उस कर्ता किसको कहे, जो परिणाम में तन्मत हो, परिणाम में तन्मय हो, उसको कर्ता कहे। यही कहा आचार्य देखे, इसमें तन्मय होके जाने तो उसको ज्ञाता, उसका अज्ञान कहे। लेकिन आत्मा परद्रव्य में तन्मय होके जानता नहीं है, इस अपेक्षा से पर को नहीं जानता है, वो अपने को जान, एक अपेक्षा से बात। तो ऐसे पर को जानता है, अपने को नहीं जानता है, वहाँ अपेक्षा कौन सी है? पर को जानता है और अपने को नहीं जानता है ना। तो पर को जानता है तो उसमें क्या है कि पर संबंधी जो उसमें फिर से वहाँ उसमें तन्मय होके नहीं जा, और पर को जानता है और अपने में, तो अपने को भिन्न रह के नहीं जानता है, उसमें तन्मय होता है। क्या है, पर को कैसे जानता है? पर को जानता है और अपने को नहीं जानता है। तो जैसे पर में भिन्न रह के जानता है, ऐसे आत्मा को भिन्न रह के नहीं जाता है। आत्मा को कैसे जानता है? तन्मय होके जानता है। नहीं आया? फिर से यहाँ एक जानने के लिए साथ में क्या है कि पहले तो लिया आत्मा को तन्मय होके जानते हैं और पर में तन्मय होके नहीं जानते। अभी तो आत्मा को जब भी एक पर में तन्मय होके नहीं जानते और आत्मा को तन्मय होके जानते हैं, अभी पर को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। तो पर को तन्मय जानते हैं तो वहाँ पर में तन्मय होके जानते नहीं है, इसलिए वहाँ एक नास्ती, और अपने में फिर से पर में जानना होता है, लेकिन क्या है, तन्मय होते नहीं है। तन्मय किस में है? आत्मा में। तो जानते है किसको जानते है? आत्मा को, पर को नहीं जानता है। और कोई कहे कि पर को जानते है, आत्मा को नहीं जानता है, तो वहाँ आत्मा में भिन्न रहते हैं आत्मा से, कि आत्मा में तन्मय होते हैं? आत्मा में तन्मय होते हैं और पर में तन्मय नहीं होते। और पर में वहाँ अपेक्षा है कि पर में जानता है, क्योंकि ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। और जहाँ पर तरफ छद्मस का उपयोग है तभी आत्मा को नहीं जानता। छद्मस की अपेक्षा, छद्मस के माने अच्छा, वहाँ भी ये पर को केवल पर को जानते हैं, तो लेकिन पर को जानते हैं तो वहाँ पर स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो पर को जानते हैं वहाँ। और वहाँ जैसे पर को भिन्न रह के जानते हैं, ऐसे स्व को भिन्न रह के नहीं जानता है, इसलिए उसको नहीं जानते, तन्मय होके जानते। जैसे पर को कैसे जानते हैं? भिन्न रह के जानते, ऐसे आत्मा को भिन्न रह के नहीं जानते, उसमें तन्मय होके जानने, तो फिर भिन्न रह के नहीं जानते, तो उसको ये तन्मय होके जानते हैं। तो वहाँ ऐसे पर को वहाँ जैसे जानते हैं तो वहाँ पर सन्मुख उसका उपयोग मुकना पड़ता है, तो ऐसे भी नहीं है। तो पर को भिन्न रह के जानते, ऐसे आत्मा को नहीं जानते हैं, इस अपेक्षा। इसमें 2 अपेक्षा है अलग अलग प्रकार से, कि स्वपर प्रकाश ज्ञान है तो जानते हैं, और ऐसे आत्मा को भिन्न रहता ही नहीं है, तो उसमें तो नहीं रहते, ऐसे आत्मा में नहीं। ऐसे तो इस प्रकार यहाँ तो क्या करना
कि विविध विकल्पों से, देखो इसमें ये गाथा है, देखना है तो देख लेते हैं अभी। सुधोपयोग अधिकार में देखो 166 गाथा है। 166 वंश में क्या लिखा है? निश्चय से केवली भगवान आत्मा स्वरूप को देखते हैं, लोकालोक तो नहीं। ऐसे यदि जो कहे तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, ऐसे लिखा है। तो इसमें कैसे है कि अपने आत्मा को कैसे जानते हैं? अपने निश्चय से केवली भगवान आत्मस्वरूप को देखते हैं, लोकालोक को देखते नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसमें क्या दोष आता है? अर्थात कोई दोष नहीं है। तो देखो इसमें टीका में लिया है, तो अंतर्मुख केवल ज्ञान में लीन ऐसे अपने आत्मा को ही देखते हैं। देखो कैसे अपने आत्मा को देखते हैं? निरंजन निसदर्शन सच्चिदानंद आत्मा को निश्चय से देखते हैं, लेकिन ऐसे ही तन्मय होकर लोकालोक को देखते नहीं है। इस अपेक्षा से उसको कहा है। देखो इसमें इसका खुलासा नहीं, नेक्स्ट पेज में 330 पेज पे है। यहाँ निश्चय व्यवहार संबंधी ऐसा समझना कि जिसमें स्व की अपेक्षा हो वो निश्चय कथन है, और जिसमें पर की अपेक्षा है वो व्यवहार कथन है। देखो क्या आया? स्व की अपेक्षा निश्चय कथन है, या उसको जानते नहीं, ऐसे नहीं। जहाँ अपनी ही अपेक्षा में केवली अपने आत्मा को जानते हैं, इसमें किसकी अपेक्षा आई? तन्मयता, स्व की आई, तो उसका नाम निश्चय हो। और लोकालोक को जानते हैं, इसमें किसकी आई? पर की। तो ये अपेक्षा उसको व्यवहार, क्योंकि वहां तन्मय नहीं। यहाँ स्व को जानते उसको निश्चय क्यों कहा? क्योंकि तन्मय। ये आयत इसे ये तो इसलिए केवली भगवान लोकालोक को या अन्य पर को जानते देखे ऐसा के ना वो व्यवहार कथन है। क्या शब्द दिया? लोकालोक को पर को जानते ऐसा के ना वो व्यवहार कथन है। कथन है लेकिन नाम नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, कथन शैली में लिया है। क्योंकि वहाँ किसकी अपेक्षा? लोकालोक को जानते, इसमें किसकी अपेक्षा आई? पर की आई ना, पर को जानते। तो पर को जानते तन्मय नहीं होते, तो इस अपेक्षा उसको क्या कहा? व्यवहार कहा है। और केवली भगवान स्व आत्मा को जाने ऐसा कहना वो निश्चय। यहाँ व्यवहार कथन का वाच्य अर्थ ऐसा न समझना कि जैसे छद्मस्त जीव लोकालोक को जानते देखता ही नहीं, ऐसे केवली भगवान लोकालोक को जानते देखते नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसे हम नहीं जानते लोकालोक को, ऐसे केवली भगवान भी जानते नहीं, ऐसा नहीं लेना उसका वाच्य, नहीं लेना उसका। छद्मस्त जीव के साथ में माने कंपैरिजन में अपेक्षा से केवली भगवान लोकालोक को जानते देखते वो बराबर सत्य है, यथार्थ है? तो इस प्रकार ये इसमें लिखना है। चलो और अभी देखना है दूसरी गाथा 169। ओके, तो यहाँ लिखा है, देखो व्यवहार से केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं। ऐसा यदि कोई कहे तो उसको क्या दोष है? देखो पूरा उससे विपरीत आया। व्यवहार से, व्यवहार की बात है वो तो वही तो सबसे बड़े है ना, कि जैसे लोकालोक को बिन रहकर भगवान उनको जानते, ऐसे आत्मा को बिन रहकर नहीं जानते, इसलिए वो नहीं जानते, इसे कहा। केवली भगवान लोकालोक में तन्मय होकर जानते हैं। लोकालोक तन्मय उसमें होकर जाने तो क्या होगा? तो वो लोकालोकमय हो जाएगा, तो जड़ हो जाएंगे, और निगोद के जीव का दुख को जानेंगे तो स्वयं दुखी हो जाएंगे। तो जैसे लोकालोक को भिन्न रह के जानते हैं, ऐसे आत्मा को भिन्न रह के नहीं जानते, इसलिए उसको नहीं जाना का। उसका अर्थ नहीं तो वहां तो तन्मय होकर जाना, माने दोनों में ऐसे नहीं समान, इसलिए यहाँ इस प्रकार की शैली होती है। तो वहाँ तो जो हम कहते कि जावाणीय ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वो व्यवहार कथन हो गया। देखिए फिर से दो प्रकार कथन और एक क्या है? हाँ।
लोकालोक का ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर से एक आप इतना समझ ले, ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना है किसको जानना? स्व पर को, नहीं नहीं, स्व को ही जानना पर। स्व पर को। यदि स्व को ही जाने तो आपने ज्ञान के स्वभाव तो क्या कर दिया? मर्यादित कर दिया। ज्ञान का स्वभाव जानना किसको माने? जो भी ज्ञेय है उसको जानने योग्य को जानना। तो कि जानने योग्य कितने जगत में? सभी पदार्थ में प्रमेय तो गुण है, तो वो जानने योग्य है, लेकिन उसको कोई जानने वाला नहीं। कैसे संभव है? वो कैसे है? जानने योग्य है, लेकिन उसको कोई जानने वाला नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? तो फिर उसको जानने योग्य क्यों कहा? जानने योग्य उसको किसी ने जाना तभी तो खबर पड़ा ये कि ये है। तो केवली भगवान लोकालोक को जानते तो है, लेकिन क्या नहीं, उसमें तन्मय नहीं। बस इसलिए लोकालोक को जानते, इसमें पर की अपेक्षा आई, इसमें तन्मय नहीं है, इस अपेक्षा से नहीं जानते, ऐसे कथन पद्धति आती है। तो उसमें क्या सिद्ध करना है? नहीं, ये जो हम कहें जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो हाँ। ये कौन सा कथन हुआ? फिर से जानते हैं इस अपेक्षा से निश्चय है, लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते, तो व्यवहार कहो। दोनों अपेक्षा लगा सकते हैं। ज्ञान का अभाव नहीं है, लेकिन इसमें किसका अभाव है? तन्मयता का अभाव है। जानना तो होता है, सूझे लोकालोक तो है। समय सार के पहले कलश में लिखा है सर्व भावांतर छिदे, तो है, उसका कोई मना। अभी इसमें अपेक्षा लो कि वो, अच्छा एक और भी समझ लीजिए, हम पर पदार्थ तो जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? तन्मय होके जानते। तन्मय तो पर में तन्मय नहीं होते, कोई भी नहीं होते, लेकिन कैसे जानते हैं? एकत्व पर, एकत्व पर में मानते हैं, होते तो नहीं। और भी एक और, जब भी हम पर को जानते हैं, तुम्हारा उपयोग पर लक्ष्य में है, छद्मस्त है। कभी भी हम नहीं पर नहीं का ज्ञान करेंगे तो हमारा उपयोग किसकी ओर होगा? तो ऐसे ही केवली परमात्मा को ऐसे कोई उपयोग लगाना नहीं पड़ता। तो इस अपेक्षा है, तन्मयपना नहीं है। एक सभी अपेक्षा से क्या कहा? वो जानते हैं, वो क्या है? व्यवहार है, नहीं जानते इसे। लेकिन जैसे जैसे असद्भुत व्यवहार है, ऐसा वो व्यवहार नहीं है। क्या है? बहुत फर्क है। आप सभी व्यवहार को असद्भुत ही कहेंगे तो आत्मा में दर्शनान चारित्र है, ये भेद है, वो निश्चय या व्यवहार है? निकल जाए, वो सद्भुत व्यवहार है, सद्भुत अनुपचार है ना। तो फिर तो सभी गुण निकल जाएंगे। नहीं, ये पानी के ग्लास जैसा होगा, कुम्हार ने घड़ा किया, जो असद्भुत व्यवहार का है ऐसा ये होगा, तो आत्मा एक भी गुण नहीं रहेंगे। तो जहाँ जितनी उसकी कथन की मर्यादा है उतनी ये समझ लेना। तो ऐसा दोनों में से कौन सा अच्छा है कि कौन सा बोलना चाहिए कि निज निधि निज में बताई यही वो तो जिनवाणी का उपकार है कि मेरा मारे में सब कुछ है, लेकिन उस जिनवाणी के निमित्त से हमें लोकालोक का ज्ञान होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो दोनों की चॉइस है आपको, तो कौन चॉइस तो नहीं, दोनों से स्वीकार करना है। दोनों का स्वीकार कर, दोनों ज्ञान अपेक्षा से दोनों, इसमें कोई गलत नहीं है। देखो, चलो वो पूरा करना है तो पूरा पढ़ लेते। चलो वो फुटनोट में हमने पढ़ा था ना 330 पेज में, तो वहाँ जो स्व की अपेक्षा है वो निश्चय और पर की अपेक्षा है वो व्यवहार। इस प्रकार केवड़ी भगवान लोका को जानते हैं, इसके न कथन नहीं, और आत्मा को जने अहिया व्यवहार नहीं का कथन, ऐसा न समझना। 330 पेज नंबर 330 उसकी फुटनोट। बस आ गई। देखो इसमें वहाँ हम चौथी लाइन पे आए, अही व्यवहार कथन का वाच्यार मेला व्यवहार कथन वाच्यार, ऐसा कहना, ऐसा नहीं समझना कि जिस प्रकार छद्मस्त जीव लोकालोक को जानता देखता ही नहीं है, उसी प्रकार केवल भगवान को जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं। हमें लोकालोक का पूर्ण ज्ञान है नहीं, कोई ऐसा मत मानना कि ना हमें तो पूर्ण ज्ञान हो रहा है, इसमें जितना छद्मस्त है नहीं इतना लक्ष्य पूर्वक जान लेते, ऐसा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए लोकालोक झलकते हैं, हाँ तो पर्याय में आते हैं, हाँ आते हैं ना, झलकते हैं ना, मगर मेरा इतना मैं जानता हूँ, बाकी को मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा है।
लोकालोक झलकते हैं कौन सी अपेक्षा से आपने लिया? परग्नि की अपेक्षा से। अतः परग्नि का ऐसा जानने योग्य है, सब में जानने में आ जाए ऐसा नहीं है। बराबर। तो एक अपेक्षा तो एक अपेक्षा तो हमें लोकालोक ज्ञान हो गया। तो मैं तो इस अच्छा है बोला आपने, मेरे में तो सिद्ध भगवान जैसा अनंत आनंद है, लेकिन मेरी अभी नहीं है इसलिए दुख है, ऐसा कोई लेंगे क्या? अभी ज्ञान में घटाते तो मैं तो आनंद में घटा दूंगा। आपने जो यदि ज्ञान के लोकालोक मेरे में तो झलक जाता है, लेकिन मैं जितना अक्षर में इतना जानता हूँ, तो फिर मुझे कितना आनंद है? सिद्ध भगवान जैसा है। फिर मेरा जितना है तभी विपरीत है तो नहीं लेता हूँ। अभी सम्यक दर्शन होगा तो थोड़ा ले लूंगा, ऐसा है। ऐसा नहीं है, कभी कल्पना मत कैसी करना। अरे ज्ञानावरणी का पूर्ण क्या है? पूर्ण उदय माने उदय है कि वहाँ पूर्ण ज्ञान खिला ही नहीं है, तो फिर वो झलकते है कहाँ से फिर आया? और दो कार्य है, एक झलकना भी होता है और जानना है। ऐसे दो काम है, दो काम है कि एक ही इंसान जो जानता है उतना ही झलकता है, वो सिंपल है। जितना जानता है उतना ही झलकता है, इतना ही एक ही बात है। पूरा झलकता तो पूरा है और थोड़ा ऐसे नहीं है कुछ। जितना सूक्ष्म है इतना ही मैं क्या हूँ, जानता हूँ, झलकता। तो फिर इसमें आगे पढ़ते हैं। इसे जैसे छद्मस का ज्ञान नहीं, केवली का ज्ञान है, ऐसा छद्मस नहीं देखता है, तो ऐसे केवली भगवान लोकालोक नहीं देखते, ऐसा नहीं है। छद्मस तो जीव के साथ क्या सरखामणि तुलना की अपेक्षा से तो केवली भगवान लोकालोक को जानते देखते हुए बराबर माने यथार्थ सत्य है, बराबर सत्य है, यथार्थ है। उसके क्या सिद्ध हुआ? जैसे छद्मस को अपना सूक्ष्म के अनुसार ज्ञान होता है, तो केवली भगवान को पूर्ण ज्ञान। ये बात सही है, यथार्थ है, समीचीन है। ज्ञान का अभाव नहीं है, सिंपल बात है, लेकिन वहाँ क्या है, उसमें एकत्व नहीं है, तन्मयपना है। देखो आगे, क्योंकि वे त्रिकाल संबंधी सर्वगुण पर्याय को यथासित बराबर परिरूप से वास्तव में जानते देखते हैं। एक क्लियर कट शब्द है। कौन जानते देखते हैं? केवली की बात है। केवली कौन से केवली भगवान? सहयोगी माने वो चतुर्थ काल वाले के कौन से? सभी के। नहीं महाविद्य वाले या भरत एरावत वाले? सभी। अरे तो केवली में भी भेद करना लगा तो क्या? अरे केवली भगवान काल वाले नहीं होते, ये कोई क्षेत्र वाले नहीं थे, भगवान भगवान होते। तो केवली भगवान लोकालोक जानते देखते ऐसा करते हुए पर की अपेक्षा आती है इतना ही सूचित करने के लिए। क्या शब्द दिया इसमें? क्या आती है? पर की अपेक्षा आती, इतना ही सिद्ध करना है, ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं करना है। बराबर। और केवली भगवान जिस प्रकार स्व को तद्रूप होकर निःसुख के संवेदन सहित जानते हैं अपने को, उसी प्रकार लोकालोक पर को तद्रूप होकर पर सुख दुखादि संवेदन सहित नहीं जानते। आ गया? तद्रूप होकर तो स्व को कैसे जानते हैं? तद्रूप और साथ में आनंद का वेदन। ऐसे तद्रूप होकर पर को जानते नहीं और दुख का वेदन नहीं करते हैं, परंतु पर से बिल्कुल भिन्न रहकर सुख दुख का संवेदन किए बिना जाए, इतना ही सूचित करने के लिए लोकालोक जानना व्यवहार कहा है। असद्भुत व्यवहार जैसा नहीं, कुम्हार ने घड़ा किया ऐसा असद्भुत व्यवहार नहीं। अब इसे और क्या खुलासा करें? पूर्ण रूप से है पर में जानते, तो जैसे स्व को नहीं जानते लोकालोक को जानते, तो लोकालोक को भिन्न रह के जैसे जानते हैं, ऐसे ही अपने आत्मा को केवली भगवान भिन्न रह के जानते हैं। तो इस अपेक्षा से कहा कि अपने को नहीं जानते। अपने को जो जानते हैं वो किस प्रकार से जानते हैं? तन्मय रूप से। लोकालोक को भिन्न रहकर, तो इस प्रकार से लोकालोक को जानते, तो इस भिन्न रहकर आत्मा नहीं जानते, इसलिए उसको नहीं जानते इसे कहने में। इसलिए ये देखो, ये पूरा बात कहाँ लिया आचार्य देव ने? तो उसको भी व्यवहार कहेंगे, वो सेकंड सेंटेंस को भी। इसको कि जिस तरह से लोकालोक को जानते हैं, इस तरह से अपने को नहीं जानते हैं, इस कहना। इसलिए उसको नहीं जानते इसने कहा है, बस।
वहाँ निश्चय वाक्य नहीं। इसलिए एक कथन शैली यदि कोई कहे तो चिंता मत करना, इतना जान लेना तो बस 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 बराबर। कि पर्ग में जैसे भिन्न रह के जानते हैं, ऐसे अपने को आत्मा को भिन्न रह के जानते नहीं है। तो कैसे जानते हैं कि निश्चय से तन्मय होकर जानते, इसलिए वो पहले बोल लिया। तो इस प्रकार यहाँ ये दोनों प्रकार है, ऐसा लेना है। चलो अपना विषय पे हम आ जाते हैं। फिर से यहाँ हम कहाँ पहुंचे थे? विभाव पर्याय को निश्चय से मैं करता नहीं हूँ। क्यों करता नहीं हूँ? क्या लिया? पेज नंबर मिला कि नहीं? 150 इसमें है। हाँ बस आ गया आ गया। अब है ना, अब इन उपरोक्त विविध विकल्प। तो फिर से विभाव पर्यायों का निश्चय से मैं करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे में है ही नहीं। पहले तो आगे पद आ गया ना, मेरे में है ही नहीं। तो पर मेरे में नहीं है तो उसका मैं करता कैसे बनता? हाँ, मेरे में न हो उसका मैं क्या हो सकता हूँ? मेरे में ज्ञाता हो सकता हूँ। मेरे में नहीं है उसके साथ क्या हो सकता है? एक क्षेत्रावगाह संबंध हो सकता है, संयोगसित संबंध हो सकता है, लेकिन कर्ता कर्म नहीं। और ज्ञाता हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। तो ये यहाँ मैं मेरे में नहीं, इसलिए करता नहीं तो मैं कार्यता भी नहीं। तो ये देखो ये दो तो आ गए। इसमें फिर से एक बॉटम लाइन प्रिंसिपल क्या है, वो सभी में अप्लाई होना है। वैसे मैं भिन्न हूँ, मेरे में है ही नहीं। मेरे में नहीं तो करता भी नहीं, और कोई किसी के द्वारा मैं कराता भी नहीं है। तो अभी तीसरा कहते हैं तो मैं अनुमोदक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में नहीं है। तो प्रश्न होता है, तो मेरे में नहीं, मैं करता नहीं, तो कुछ भाव तो है ना, तो उसका कौन करता है? प्रश्न तो है ना। मेरे में नहीं है, मैं उनका करता नहीं हूँ, तो वो परिणाम तो है कि नहीं? ज्ञानी की बात करते, ज्ञानी की बात है तो है ही ना। तो क्या है, उसके कौन करता है? तो उसका जवाब दिया, पुद्गल कर्मरूप कर्ता का। वो पुद्गल करता है तो, लेकिन करने मैं उसका क्या हूँ? अनुमोदक नहीं हूँ। क्या लिखा है शब्द मिला? पुद्गल कर्मरूप कर्ता का अनुमोदक नहीं। ये पुद्गल के निमित्त से सभी होते हैं ना। जो चार गति की होते हैं किसके निमित्त से होते हैं? गति मिलती है कौन से निमित्त से? नाम कर्म से। और आयुष्य क्या होता है? आयुष्य को निमित्त, आयुष्य से आयु कर्म के, आयु कर्म से। आपने कहा चार गति के जो है उसमें निमित्त कौन होता है? नाम कर्म की प्रकृति। तो वो आयुष्य क्या होता है? तो अघाती कर्म का निमित्त हो गया। कोई बात नहीं, तो नाम ही भी अघाती कर्म में, नाम कर्म। ओके। तो वो निमित्त रहा। हाँ, तो इससे क्या निमित्त है? तो उससे क्या नाम, दोनों अघाती कर्म है, नाम और आयुष। तो नाम ये चार गति में ऐसे ऐसे जो है उसमें नाम दिया जाता है, वो नाम कर्म का है गति में। तो लेकिन तो आयुष से क्या होता है? आयुष जो मेरी पर्यागत योग्यता, इससे मैं जिंदा रहता हूँ। अरे जो नाम कर्म के निमित्त से वहाँ गति की पर्याय जैसे है ना, इसमें उसमें कितना काल रहना वो आयुष है। कौन सी गति इसमें कौन है? नाम कर्म। लेकिन उसमें उस पर्याय में कितना समय रहना वो किसका है? आयुष का है। तो उनका काम है, पुद्गल का काम है। संयोग की रचना करना किसका काम है? पुद्गल का है। उदय का काम है, और तू उसमें उलझा रहा था, मैंने किया, मैंने इतना किया है। एक बहुत अच्छा एक लिया है, माने दूसरे कर्म है, वो क्या करते हैं? संयोग की रचना करता है, और आयुष के निमित्त से वहां रक्षा होती। शरीर में मुख्यतः शरीर की रचना किन से निमित्त से? नाम कर्म के। और उसमें कितना रहना? वो आयु। तो मैं क्या करता हूँ? मैं आनंद में मौज करता हूँ। शरीर का कैसा होना? वो नाम कर्म की रचना, माने नाम कर्म रचना करे, आयुष कर्म रक्षा करे, तो मैं आनंद में मौज करूँ, मेरा काम नहीं। हम तो ऐसे ही मान लेते, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, मैं उनकी कुछ अच्छी रचना करता हूँ, दूसरे का काम माथे मत लेना। तो इस प्रकार यहाँ एक, या तो जैसे एक और भी इसमें ये लेना है,
कि विवाह उन पुद्गल जिसका करता है। समय सार में भी ऐसी एक गाथा आती है। वहां तो एक आश्रव लिया, आश्रव के भेद में से फिर गुणस्थान, तो उसमें तो लिखा है आचार्य ने कि पुद्गल उसमें करे तो करो, इसमें मुझे क्या, कर्ता कर्म अधिकार में एक गाथा आती है। तो यहाँ तक अपने इतना लेना है कि जो पुद्गल कर्म रूप कर्ता का मैं क्या अनुमोदक नहीं हूँ, ऐसा यहाँ किया। इसमें एक और ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है? कर्ता नहीं, कारतय नहीं, अनुमोदक नहीं, उसमें कौन? और कारण भी नहीं। कारण भी नहीं। यहाँ जो मूल गाथा में है ना, दो गाथा में लिया ना, वो सभी में सम्मिलित कर लेना। ऐसा नहीं कि खाली दो गाथा के लिए ये, वो सभी गाथा में उसमें लेना। अभी बहुत अच्छी अस्ति नास्ति से करते हैं। यहाँ सब हमें क्या आया, यहाँ तक क्या आया सब? किसके आई? नास्ति ही आई, सभी नास्ति परक शब्द आ गए। अभी साथ में अस्ति भी लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? मैं नारक पर्याय को करता नहीं तो क्या करता हूँ? जैसे कि ना अमृतचंद्राचार्य 218वें कलश में कहते हैं समय सार में, ये टीका किसने रची है? पद्ममल कर दिया। नहीं, समय सार की तो आत्म 218 में वो किसने रची है? अमृतचंद्र। ऐसा अमृतचंद्र ऐसा लिखते है कि मैंने टीका रची, ऐसा लिखा है उन्होंने 278 में? नहीं, वो तो क्या लिखा है? वो पुद्गल कर्म से, भाषा वर्णना से, या जो पुद्गल द्रव्य ने स्वयं की शक्ति से इसकी रचना है। वहाँ कर्म की जरूरत नहीं है। वहाँ तो पुद्गल द्रव्य ने, पुद्गल स्कंद ने, पुद्गल द्रव्य ने स्वयं शक्ति से इसकी रचना की है। मैं स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं। तो ये तो क्या आई? नास्ति आई। तो हम पूछ सकते हैं ना, आचार्य देव आप क्या करते? वो लिखने की क्रिया में आप थे, उसके विकल्प में आप थे, क्या थे? तो भाई इसलिए तो लिख दिया मैं स्वरूप गुप्त था। तो यहाँ ऐसे ही कहते हैं कि क्या करते हैं कि ऐसी भावना करने के मैं नारक पर्याय को करता नहीं। इसमें ये भी सब लेना ना, करता नहीं, कारतय नहीं, अनुमोदना नहीं, कारण भी नहीं। कभी सोचना है ऑल द टाइम। मैं अभी नारक पर्याय में, तभी मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय को करता नहीं ऐसे लेना चाहिए। नारक पर्याय को क्या ऐसे लिया? भूत भविष्य वर्तमान में जो, अरे यह प्रतिक्रमण है भूतकाल के दोषों के। भूतकाल में मैं मानता था। प्रतिक्रमण किसके लिए है? भूतकाल के दोष के लिए है ना। तो मैं अभी वर्तमान में ही कहते, मैं तभी किया नहीं था, अज्ञानता से मानता हूँ, वो मेरी भूल है। अभी उसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ कि मैं करता नहीं हूँ। मैं करता सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, भूतकाल में मैंने जो गलती की उसको मैं सुधारता हूँ। और अभी निर्णय करता हूँ कि भविष्य में भी मिलने वाली तो नहीं, कदाच मिली तो भी उसका मैं नहीं करता नहीं था। कदाच मिले तो भी उसके तीव्र आया था ना, आरंभ परिग्रह आया था ना, तीव्र मोह आग्रह सभी का, मैं उसका करता तो मैं क्या, सही मानने में ज्ञानी तो ऐसी भावना करते ही। हमें क्या भावना? तो देखो, सह चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही मैं भाता हूँ। क्या शब्द आया? देखो आचार्य मुनिराज एक एक आत्मा के लिए कैसे शब्द प्रयोग करते हैं। विशेषण क्या दिया? विलास, सहज चैतन्य। फिर से सहज, स शब्द क्या आया? निर्विकल्पता, गुण को दिखाना, गुण को। मेरा चैतन्यपन परिणति की बात नहीं है, मेरा स्वभाव है, त्रिकालिक गुण है, सामर्थ्य है, शक्ति है, स्वरूप है कि सहज चैतन्य के। फिर विलास, और विलास माने क्या? राजा महाराजे के पहले थे ना विलास, और महल होते थे और सभी। विलास माने वहाँ क्या अर्थ है? प्रोस्पेरिटी की। वहाँ तो वे राग द्वेष में, उसमें मोह में ऐसे विलास करते हैं वो। यहाँ कहते विलास माने यहाँ आनंद है। तो देखो चैतन्य ज्ञान के साथ आनंद लिया। आ गया? सिर्फ ऐसा नहीं, ये मुनिराज की बहुत ऐसी शैली है। कहीं भी देखना है ऐसा शब्द, वो आगे बहुत आना पड़ेगा। फिर तीसरी गाथा देखनी पड़ेगी। तीसरी गाथा में मैं कैसा हूँ?
पेज नंबर 8 हम्म, मिला, इसमें बीच में ठीक है। दूसरा है ना, दूसरा भगवान परमात्मा के, मिला नीचे से चौथी लाइन, भगवान परमात्मा के सुखाभिलाषी जीव को, देखो ये तो पहली पात्रता ली, भगवान परमात्मा के सुखाभिलाषी जीव, हमें कैसा होना चाहिए? सुखाभिलाषी। कौन सा? देव जैसा, नहीं, चक्रवर्ती जैसा? नहीं, परमात्मा जी। भगवान परमात्मा के जो परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद, उसका पहला अभिलाषी बन, ये तेरी पात्रता होगी। तो फिर क्या करना? शुद्ध अंत तत्व के विलास का जन्मभूमि स्थान, देखो किसको याद किया? मुझे आनंद चाहिए, तो लेकिन वो कहाँ प्रकट होगी? ये होता है ना बाई में, जो क्या बोलते हैं, फार्म होता है ना, खेत बोलते हैं ना, वो तो उस वहाँ क्या उसमें उत्पन्न होते हैं, अनाज आदि होते हैं ना। या, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी है, तो उसके लिए भूमि भी अच्छी करनी पड़ती है ना, फर्टाइल बोलते हैं ना इसको। कोई अच्छा है तो आपको करना है तो भूमि कैसी करनी पड़ेगी? फर्टाइल बनाते हैं। ऐसे यहाँ कहते हैं कि आनंद का जन्मभूमि स्थान कौन है? अनुकूल सामग्री है, शुभ राग है, साता का उदय है, कि कौन है? शुद्ध अंत तत्व है। ऐसा निज शुद्ध जीवास्तिका है, उससे उत्पन्न होने वाला परम श्रद्धा। देखो श्रद्धा के साथ क्या लिया? आनंद लिया। आनंद लिया। ऐसे मुनिराज ऐसे ही कोई भी रत्नत्रय की परिणति लो, आनंद साथ में है। तो यहाँ भी ऐसे कहते हैं कि ये मैं सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही मैं क्या हूँ? भाता हूँ। भाता हूँ माने क्या हूँ? उसका ही श्रद्धान करता हूँ, इसको ही जानता हूँ, और उसको मैं ही रमणता करता हूँ। भाता में सभी ले लो निर्मल पर्याय, और यहाँ तो प्रतिक्रमण है। और प्रतिक्रमण किस में आता है? किस में आता है? चारित्र में। तो चारित्र किसके साथ होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान सूर्य, माने तीनों परिणति लेना। ये तो सभी और भी आनंद गुण के लेना, लेकिन ये भी। तो फिर मैं ये नहीं करता हूँ, तो आप क्या है, आइडल बैठे हो कि नहीं? मैं क्या हूँ? निरंतर क्या करता हूँ? अपने सहज चैतन्य के विलास आत्मा को ही, इसमें मैं उनकी श्रद्धान करता हूँ, उसका ज्ञान करता हूँ, उसमें ही मैं रमणता करता हूँ। ऐसे ही सब में ले लेना। मैं तीर्य पर्याय को नहीं करता। फिर से कोई कहे अभी तो है ही नहीं, फिर उसके क्या करना? पहले प्रतिक्रमण की बात है तो पहले में था। अरे भाई प्रतिक्रमण भूतकाल में, तो भूतकाल में कभी तू था कि नहीं नरक पर, और कभी तिरंग, और अभी भी तुझे भविष्य में नहीं जाना है, तो अभी का निर्णय कर ले। वो पर्याय आए या नहीं आए, मैं उसका करता नहीं, न कार्यता नहीं। कोई निमित्त से कोई जीव करे तो करो, और मैं उसका अनुमोदन नहीं है। पुद्गल करे तो सो भले करो, कारण भी नहीं। तो मैं निरंतर क्या करता हूँ? सचैत। देखो अस्थि, ये पूरा अस्थि साथ में लेना, सिर्फ नास्ति नहीं। इसलिए पूरी गाथाओं में क्या लिया है? पूरी गाथा में क्या लिया है? नास्ति। पूरी गाथा में पूरी नास्ति है। लेकिन ये हमारा ध्यान लेना चाहिए, मुनिराज के सिर्फ नास्ति नहीं होती, साथ में क्या होती है? अस्थि। अस्थि का इतना जोर आता है कि फिर नास्ति भी के विकल्प भी छूट जाते हैं। तो यहाँ लेते चैतन्य के विलास आत्मा, बस एक ही काम रहता नहीं। आचार्य का कितना काम रहता है? अरे पूरा 4 संख्या तो नेता होते हुए, किसी को दीक्षा लेनी है, प्रायश्चित करना है, सभी काम करते हैं ना। वो काम करते मगर करने की। अरे भैया तुझे वही दिखा, उनकी 3 कसाई की वितरागता नहीं दिखी तुझे? क्या तुझे क्या दिखा? उनके भूमिका योग का विकल्प तुझे मुनिराज में 28 मूल नहीं दिखता है तुझे? वहाँ आत्मा स्वरूप की स्थिरता है, वो तुझे नहीं है। अरे जिसका सौधर्म इंद्र से के भी अधिक है, चाहे सौधर्म इंद्र 1 भव तारे होता है, मुनिराज को शायद और 2 भव करना पड़े, तो भी उस समय सौधर्म इंद्र से अधिक आनंद है उनका। ये तुझे नहीं दिखा? तब मुनिराज कहते हैं हम तो यही काम करता हूँ। तो मनुष्य पर्याय को भी नहीं करता, और देव पर्याय को। इस प्रकार जो 5 गाथा जो आई थी नास्ति रूप से, 4 गति आई थी, फिर क्या आया था? जो भेद आया, मार्गण स्थान, गुण स्थान, जीवन। इसके बाद में क्या आया था? शरीर, मनुष्य की शरीर आया था ना, बालक युवान वो आया। इसके बाद में
मोह राग द्वेष आया और आखिर में क्या आता? चार कषाय। कषाय। ये सब की इस प्रकार से नास्ती करके अंत में फिर और भी आएगा उसका विस्तार। Any questions from audience? हाँ, कोई किसी का प्रश्न होता है तो पूछ सकते हैं अभी। आज का बहुत बहुत डिटेल में था। क्वेश्चन रेखा बेन? ना। दिलीप भाई, क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा डाइजेस्ट करने में लगा हूँ। हेमंत भाई प्लीज રેખા हाँ તમે એક્સપ્લેન તો કર્યું કે કર્મ અને રાગનું રિલેશનશિપ, પણ આપણે કહીએ કે કર્તા અને કાર્ય એક જ દ્રવ્યમાં થાય, એ ધ્યાનમાં રાખી ને આ કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરી શકાય? આઈ નો યુ ડીડ એક્સપ્લેન, પણ મને ક્લિયર નથી થયું એકદમ. આમાં આખી શૈલી આપણે એટલા માટે એમાં ખાસ મેં ધ્યાન તો દર્યું, નિશ્ચયથી આખી વાત છે. હવે તમે કીધું ને એક દ્રવ્ય, જેમ કીધું ને એક દ્રવ્યમાં કર્તા કર્મ પણ હોય, બરોબર છે? જી. એવી જ રીતે લ્યો, કર્તા કર્મ પણ કોના વચ્ચે હોય? બે સમાન જાતિના ભાવો વચ્ચે હોય કે એક રાગ એનું કારણ બને અને વિતરાગતા એનું કાર્ય બને? એવું બને ક્યારે? તમે એક દ્રવ્યની વાત કરી, એમ હું એક જાતિના ભાવ લઉં. તમે એક દ્રવ્ય માટે એક જાતિના દ્રવ્ય લીધા કે એક જ જાતિનું એક દ્રવ્ય છે એમાં જ કરતા, હું પછી બે ભાવ લઉં છું, તો બે વિરુદ્ધ ભાવ વચ્ચે કર્તા કર્મ પણ હશે ક્યારે? નિશ્ચયથી. તો બસ, તો અહીંયા એ વાત છે કે જે સ્વભાવ છે એ તો વિતરાગતામય છે, શુદ્ધતામય છે, તો એનામાં રાગ ક્યાંથી હોય? તો આ તો બધા રાગના નિમિત્તો બધા બતાવ્યા, વિભાવ ભાવ, કે ચાર ગતિ મળે છે, રાગ દ્વેષથી મળે છે, ભેદભાવ છે એના લક્ષ્ય રાગ થાય છે, પછી શરીરની પર્યાયના બધા નિમિત્તોમાં બધા તો રાગ છે, બધા એમાં કર્મ નિમિત્ત છે અને એનું રાગ ના લક્ષ્ય. તો એ સંબંધ કોનો બતાવી દીધો આખો? કે જેના સંગમાં થાય છે, જેના લક્ષ્ય થાય છે, જેના નિમિત્તે થાય છે, એમાં એ નાખી દીધો. અને અહીંયા જીવ તો કેવો છે? જ્ઞાનમય છે, વિતરાગતા ભાવમય છે, તો એમાં ક્યારેય રાગ સાથે એનું કર્તા કર્મપણું હોય નહીં. એ રીતે સિદ્ધ કરવું. એટલે બે વિરુદ્ધ ભાવો સાથે એ પણ ન હોય કર્તા કર્મપણું. જેમ બે દ્રવ્યો વચ્ચે ન હોય એમ અહીંયા બે વિરુદ્ધ જાતના ભાવ વચ્ચે પણ ક્યારેય કર્તા કર્મપણું હોઈ શકે નહીં. આપ તમે કર્તા કર્મ અધિકાર આખો શરૂઆત લેજો અને એમાં શેનાથી આપણને કર્તા કર્મપણું છોડાયું છે? પડદ્રવ્ય સાથે ન છોડાયું, આશ્રવથી છોડાયું છે. પેલું આત્મા અને આશ્રવ તણો જ્યાં ભેદ જાણ, આખી પહેલી વાત એ લીધી છે. તો આખી એક સમયસાની એવી એક શૈલી છે. એમાં અહીંયા નિયમસાર પણ એ રીતે જ દેખાડે છે આપણને કે બે વિરુદ્ધ જાતના ભાવો ભલે એક જ દ્રવ્યમાં છે પણ બે કેવા છે? વિરુદ્ધ જાત છે. એક રાગ છે એ બંધ માર્ગમાં છે, વિતરાગતા છે મોક્ષ માર્ગમાં છે. તો એક જ દ્રવ્યમાં ઓલું જે તમે કહો છો કે બે દ્રવ્ય વચ્ચે ન હોય, એ બે દ્રવ્યોની ભિન્નતા છે. અહીંયા હવે કોની ભિન્નતા છે? સ્વભાવ વિભાવની ભિન્નતા છે. વેદનાન કરવું છે તો કોના વચ્ચે કરવું છે? બે દ્રવ્ય વચ્ચે પણ કરવું છે, સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે કરવું છે. અને એ જ તો ગુરુદેવનું વાક્ય હતું ને, શું હતું? જ્ઞાન ને રાગ જુદા છે. તો જુદા છે તો શું છે? કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. તો કોઈ કે ના, જ્ઞાન ને રાગ તો એક જીવમાં જ થાય છે. અરે ભાઈ, એક જીવમાં ન લે, બેની હવે જાત લે, બેનો સ્વભાવ લે, અને એક વાક્યથી આખું શું થઈ ગયું? થયું કે નહીં? કોઈને થયું કે નહીં? કોઈને થયું? આ આખી શૈલી છે આખી. ઓલી જે સામાન્યપણે જે હોય છે એ બે દ્રવ્યની ભિન્નતા હોય છે, એ પણ એક જરૂરી છે. એનાથી હવે આગળ વધીને શું કરવું છે? બે વિરુદ્ધ ભાવ વચ્ચે પણ કર્તા કર્મપણું હોઈ શકે. નહીતર નવ તત્વમાંથી ખાલી અજીવથી ભેદનાન કરવાનું આશ્રય, આશ્રવબંધથી ને પુનપાપથી નહીં આવે.
જી આજનું આપણે બધા પ્રવચન યુટ્યુબ પર આત્મદર્શન નામની સાઇટ છે એમાં પણ આવે છે, એટલે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ અગેન, અને આઈ હેવ સેન્ડ ઇટ આઉટ ધીસ લિંક that you can also download the whole thing also, અને I'll send out the link again if you don't have it. JCGP માં મોકલી છે. I'll send it out again in Mona and JCGP both. That link you can download the pravachan audio and or video completely. Okay, all right. ચાલો, if જો પ્રશ્ન આવે તો આપણે we'll just do the closing. Okay, all right. We have to listen one again and again, huh? Again and again. Yeah, it is amazing. You know, that's really great. Yeah. Javanandi Sudra Swarupi Avinashi Hu Atma Swarupa Sahajanandi Sudra Swarupi अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताए यही अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोंक। 9 times नमो का मंत्र। બોલો અનંતાનંદ સિદ્ધ પરમેશ્વરી ભગવંતોનો જય હો। વૃષભાદી વીરાંતે બે ચતુર્વેદી તીર્થંકર ભગવંતોનો જય હો। સિમંદરાદી વિશ્વયમન તીર્થંકર ભગવંતોનો જય હો। જીન મુખોદ્ભવા જીનવાણી માતનો જય હો। શ્રીમંત સ્વામીના મહાદેવથી શ્રીમંત સ્વામીના સંદેશા લાવનાર આચાર્ય કુંદકંદ ભગવંતનો જય હો। પંચ પરમાગમના રહસ્ય ખોલનાર કુંદકુન આચાર્ય દેવના પંચ પરમાગમના રહસ્ય ખોલનાર કુંદકુન આચાર્ય દ્વારા થયેલા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાવનાર શ્રી ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામીનો જય હો। પ્રસન્ન મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। ધન્ય એકાવતારી શ્રી શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવનો જય હો। પરમ દિગંબર સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। જય જયકાર હો। જય જિનેન્દ્ર।